Hello students, welcome to Infinity Vision. So in this particular lecture, we are going to discuss previous year questions, right? Okay, of JEE Mains. Okay, so we have already done 3 videos in this series, and this is what the 4th one, right? So that's why, and in each video, we discussed what 20 questions, right? So this will be the 61. I mean, we will start from what? Question number 61, right? So see this question. Question number 61 says the solubility product of CrOH thrice at 298 Kelvin is 6 into 10 to the power minus 31 the concentration of hydroxide ions. तो निकालना क्या है आपको इसमें? You have to find basically in this you have to find concentration of what? Hydroxide ion. ठीक है ना? In a saturated solution of CrOH thrice will be, right? So solubility product का question है और बहुत ही simple सा question है, right? So first we will write the equation. So this is what your salt, sparingly soluble salt CrOH thrice, right? Okay, and this is solid, and this will break like this: Cr plus 3 aqueous and plus 3OH minus aqueous, right? Okay, from here, if the solubility of this particular CrOH thrice is what, suppose S, right? So that means S will go inside the water, right? And it will form S of this. The concentration of Cr3 plus will be S, and the concentration of OH minus hydroxide ion will be what? 3S, right? And after that, you can simply write the expression for KSP, and you can see that the solubility product, that is what your basically KSP, right? So this is what your KSP का expression अगर आप देखोगे तो what will be that? The concentration of Cr plus 3 into concentration of OH minus to the power 3, right? And what is the concentration of Cr plus 3? So this is what S into concentration of OH minus is what? 3S to the power 3, right? ठीक है, तो यहां से आपको S की वैल्यू आ जाएगी. So you see when you will calculate, it will come what? 27S4. So this will give you 27S4 is equals to basically what is the KSP? 6 into 10 to the power minus 31. तो S की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बच्चों? So it will come what? 6 upon 27 into 10 to the power minus 31, right? And this will go what? To the power 1 by 4. ठीक है, अब देखो एक्चुअली अगर देखो तो बेसिकली आंसर्स में भी मेरा 10 to the power minus 31 अंदर ही है, राइट? ठीक है ना? तो थोड़ा सा हमें इसको मैनिपुलेट करना होगा. खैर ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमें सॉल्युबिलिटी पता चली है. हमें निकालना क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस. व्हाट इज दैट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज बेसिकली व्हाट? 3S. तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी व्हाट? आई एम जस्ट रिमूविंग दिस पार्ट, राइट? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जस्ट रिमूव दिस पार्ट ऑल्सो. तो आंसर आपका हो जाएगा द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल बी व्हाट? 3S, राइट? और 3S मीन्स व्हाट? 3 into 6 upon 27 into 10 to the power minus 31 to the power 1 by 4. बस इस 3 को अंदर ले जाओ, राइट? 81 लिख दो, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? और 81 ले जाओगे और ये 27 3 टाइम्स हो जाएगा बस. तो एक्चुअली ये हो जाएगा 18. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, राइट? ठीक है ना? क्या हो जाएगा? तो दिस विल बी 6 into 81 upon 27 into 10 to the power minus 31 raised to the power 1 by 4, right? And this value will become what? Your 18. So option will be what? Your first option A, right? थोड़ा सा बस इसमें ध्यान में रखना है कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना था, तो ये मत भूलना कि S को डायरेक्टली रिपोर्ट कर देना, आंसर 3S करना था. And it was a very simple question. And for JEE Mains, I think solubility product is a very important topic. कई बार questions आते हैं. It's a very simple topic also, right? Okay. Moving forward, we are going to question number 62. See, the first and second ionization enthalpy of a metal, right, are 496 and 4560 kilojoule per mole respectively. How many moles of HCl and H2SO4 respectively will be needed to react completely with 1 mole of metal hydroxide? ठीक है, तो देखो बेसिकली यहां पे क्या है, अगर आप देखो तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अगर IE1 की अगर हम बात करें, राइट, सो दैट इज बेसिकली व्हाट? योर 496 किलोजूल पर मोल, राइट? ठीक है, और अगर मैं IE2 की बात करूं, सो दैट इज बेसिकली व्हाट? इफ यू सी, it's almost 10 times jump is there, right? Okay ना, or maybe you can say 9 times or 9.5 times, whatever is there, right? ठीक है, so you see here basically almost 9 times के आसपास बोल सकते हो, right? ठीक है ना? so this jump is what? 9 times. ऐसा क्यों हुआ होगा? because of that कि जब
मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, राइट? सो यहां पे जो एनर्जी देनी होगी वो IE1 है, और यहां पे जो एनर्जी देनी होगी वो क्या है, आपका IE2 है, राइट? ठीक है ना? सो इस केस में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है. द रीजन बिहाइंड दैट इज व्हाट, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस M प्लस इज व्हाट, वेरी स्टेबल, राइट? ठीक है ना? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वैलेंसी एक तरह से क्या हो जाएगी, 1, राइट? ठीक है, मतलब ग्रुप 1 एलिमेंट्स होंगे. जैसे सोडियम की बात कर लो, तो सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे, राइट, सो इट विल बिकम व्हाट, योर Na प्लस, एंड देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट डिफिकल्ट, राइट? सो यू विल हैव टू गिव व्हाट, much more energy, right? much more, IE2 will be much more than what, IE1. देखो ऐसे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ सकते हैं मान लो, और इस तरह के क्वेश्चंस इनफैक्ट एनसीईआरटी इवन जो बॉन्डिंग सॉरी पीरियोडिक का जो चैप्टर देखोगे तो उसमें एक्सरसाइज में जाके देखना, तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे. सपोज अगर मैं बोलूं, सपोज कुछ इस तरह से ले लो एग्जांपल्स, सपोज 400 इज देयर, देन 1200 इज देयर, राइट? ओके, एंड देन सपोज दिस इज व्हाट योर 2900 इज देयर. I'm just taking one example, and suppose then it is what, 18,500. अगर इस तरह का मान लो तुम्हारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर दिया हो, राइट? करना क्या है, देखो जहां पे गैप जो है वो 4 टाइम्स या 5 टाइम्स जंप हो रहा है, राइट? और ये जंप इसलिए हो रहा हो बिकॉज ऑफ दैट कि यहां पे वो मेटल बेसिकली, या नॉन मेटल जो भी हो, ठीक है ना, दैट मेटल और नॉन मेटल इज व्हाट, अचीविंग दैट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ द इनर्ट गैस और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, राइट? तो बस इसको यहां पे एक लाइन ड्रॉ करो, and whatever the number is given, that number will be what, your number of valence electrons, you can say, right? ठीक है ना? मतलब ये ग्रुप 13 का हो सकता है. You are getting this point? तो ये जो है बेसिकली ये ग्रुप 1 का होगा. तो ग्रुप 1 का जो बेसिकली तुम्हारा हाइड्रोक्साइड होगा, ग्रुप 1 का हाइड्रोक्साइड, उसका फॉर्मूला क्या होगा, MOH. अब तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, राइट? आई एम श्योर अब तो कर ही लोगे. HCl है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करना है तो ये बनेगा MCl, एंड दिस इज व्हाट योर प्लस H2O. MOH का तुम्हारे पास कितने मोल्स हैं, वो तो 1 मोल है, तो HCl के भी कितने 1 मोल्स की जरूरत होगी, राइट? नाउ अगर मैं MOH को H2SO4 के साथ मल्टीप्लाई करूं, राइट, सॉरी नॉट रिएक्ट करूं, नॉट मल्टीप्लाई, सॉरी. सो MOH विल रिएक्ट विथ H2SO4, एंड हियर बेसिकली यू सी कि इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल की जरूरत पड़ेगी, राइट, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, राइट? तो अगर इसके 1 मोल्स है तो इसके कितने मोल्स की जरूरत पड़ेगी, 0.5. तो HCl is what 1 and H2SO4 is what 0.5. That much mole is required for what, complete neutralization, right? तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 0.5. That is what your B. Okay. So this was your question number 62. Now we are moving to question number 63. ठीक है? देखो, the figure that is not. ये ऐसे ऐसे words important है, ठीक है ना? Not correct, not like that. तो एक बार क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है अपने को. एग्जाम्स में ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर, राइट? और ऐसी गलतियां नहीं करनी है हमें, ठीक है? सो द फिगर दैट इज नॉट अ डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्वांटम नेचर ऑफ एटम, राइट? देखो क्वांटम मैकेनिक्स से 2 चीजें तो तुमने पढ़ी रखी हैं, राइट? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया गया, राइट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के थ्रू, राइट? एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वाला तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये नहीं होगा. ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड है ग्राफ, ये नहीं होगा, राइट? बचा क्या तुम्हारा, ये और ये. नाउ दिस इज व्हाट योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पता है तुम्हें कि एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली वो सर्टेन एनर्जी और सर्टेन काइंड ऑफ रेडिएशंस को ही क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब करेंगे, राइट? ठीक है ना? सर्टेन काइंड ऑफ रेडिएशन को ही क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, वो एक्साइट होंगे. ऐसा क्यों? बिकॉज देयर आर सर्टेन एनर्जी लेवल्स, राइट? बोर मॉडल में ही पढ़ा होगा. दिस इज व्हाट योर न्यूक्लियस, एंड दीज आर व्हाट सर्टेन एनर्जी लेवल्स वेयर इलेक्ट्रॉन रिसाइड. ओके, सो इसका मतलब यह है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में भी क्या होगा, दैट इज ऑल्सो व्हाट यू कैन से, दैट इज व्हाट रिलेटेड टू क्वांटम नेचर ऑफ एटम. क्वांटम का मतलब ये क्या होता है, नॉट ऑल वैल्यूज, सर्टेन वैल्यूज, राइट? ठीक है ना? सर्टेन वैल्यूज यू कैन से. क्लियर है? जैसे मैं एक एग्जांपल हूं, सपोज दीज आर व्हाट स्टेयर्स, राइट? तो या तो मैं यहां हो सकता हूं, या यहां हो सकता हूं, या यहां हो सकता हूं, या यहां हो सकता हूं, राइट? सो सर्टेन स्टेप्स आर देयर, लाइक दैट, कुछ इस तरह से रिलेट कर सकते हो, राइट? ओके, so and the last one is what, internal energy, right? So internal energy is what, it can acquire any value, right? So this is definitely not the direct manifestation of what, quantum nature of atom. So answer will be here basically what, your 4, right? So in fact this will be your answer. This is not your answer, right? Because these 3 what depicts or basically what manifests the quantum nature of atom. So again it was a simple question. I think option eliminate करके भी कर सकते थे अगर इसमें डाउट होता तो. कम से कम ये 3 तो पता ही है, ठीक है ना? क्लियर है? चलो आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 64. द मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड
X per unit mass of adsorbate M was measured at various pressure P. A graph between log X by M and log P gives a straight line with slope equal to 2 and the intercept equal to 0.4771. The value of X by M at a pressure of 4 atm is, और log 3 की वैल्यू दे रखी है, नहीं भी दे रहती तो चलो ठीक है, याद ही रहता है. log 2 is what 0.3010, log 3 is what 0.4771, right? So कहां से क्वेश्चन पूछा उन्होंने? सरफेस केमिस्ट्री, फ्रिंडलिच एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म, राइट? सबको पता होगा. उसमें जो एक्सप्रेशन है दैट इज व्हाट योर x बाई m इज इक्वल्स टू व्हाट k इनटू p टू द पावर 1 बाई n, राइट? दोनों तरफ log ले लो. सो दिस विल बिकम व्हाट योर log x बाई m इज इक्वल्स टू log k प्लस log p टू द पावर 1 बाई n. 1 बाई n को मैं बाहर ले रहा हूं तो 1 बाई n and this is what your log p, right? When you see this particular equation match with what? Y is equals to c plus m and this is what your x, जो straight line की equation है, right? Now this m is what your slope, so slope is here what? 1 by n and this is what your intercept, so intercept is what? Log k. Now you see slope is given, right? Slope is given, what is the slope? Slope is equals to 2, that means what? 1 by n की जो value है वो क्या दे रखी है आपको? 2 दे रखी है, right? ठीक है. और दूसरा क्या दे रखा है? इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू व्हाट? 0.4771. सो सी इज इंटरसेप्ट विच इज नथिंग बट योर log k. सो log k की वैल्यू दे रखी है दैट इज व्हाट 0.4771 विच इज नथिंग बट log 3, राइट? सो दिस इज व्हाट योर log 3. तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3 आ गई. k 3 आ गया और आपका 1 by n 2 आ गया. उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, बस फॉर्मूला अपना बन गया. x by m इज इक्वल्स टू व्हाट? k. k इज व्हाट? 3 into p to the power 1 by n, which is nothing but 2. Now what they are saying, the value of x by m at a pressure of 4 atm, right? Just put the value of p here, right? That is what 4. So 4 square into 3, that is what your 48. So x by m की वैल्यू कितनी आ गई? 48 आ गई, right? So I hope you are getting this question. Simple, based on Freundlich adsorption, isotherm. आपने surface chemistry में adsorption में पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है? In fact, the graph is also given in NCERT, right? Now, question number 65. The Gibbs free energy change in joule. Now this is important. कुछ in joule, right? Sorry, in joule. Okay, let's change the color. So you have to find the Gibbs free energy change in joule, right? ठीक है. For the given reaction at Cu plus 2 and where the actually concentration of Cu plus 2, concentration of Sn plus 2 is equals to what? 1 molar. And 298 Kelvin is CuS for this particular reaction. देखो तो क्या निकालेंगे हमने? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना है. तो यू नो दैट डेल्टा G इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा G नॉट प्लस RT एंड दिस इज व्हाट योर ln Q, राइट? ठीक है. अब डेल्टा G नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट वी नो, दैट इज व्हाट योर माइनस NF E नॉट, राइट? तो ये आ गया डेल्टा G नॉट की वैल्यू प्लस RT, बाद में देखेंगे R की वैल्यू जो भी हो, RT इंटू वॉट? लॉन. एंड लॉन Q. Q इज वॉट? रिएक्शन कोसेंट. देखो इसको तो लेना नहीं अपने को और इसको भी नहीं लेना है, तो दैट विल बिकम वॉट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉट? Sn2 प्लस, राइट? सो दिस इज वॉट योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉट? Sn plus 2, right? And it is given 1, right? So it will become ln1, that is what your 0. So in fact एक तरह से कह सकते हो कि this particular factor will become what your 0. तो बचा क्या आपका? delta G equals to delta G naught, which is nothing but minus NF and this is what your E naught, right? अब हमें कैलकुलेट करना है E naught. तो E naught देख लेते हैं. E naught क्या होता है? E naught basically what? आपको क्या करना है? कैथोड प्लस ई नॉट एनोड, राइट? ऑफ कोर्स कैथोड पे हम रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे और एनोड पे हम लोग क्या लेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे. सो यहां पे देखो इसी रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं. तो बेसिकली हमें ये निकालना है, राइट? तो इसको साइड में कहीं लिख लेते हैं और डेल्टा ओके डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट. बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है? माइनस एन एफ ई नॉट. फॉर दैट वी नीड इन व्हाट? ई नॉट, राइट? तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा आपका? So E naught cell is basically what? E naught cathode, right? E naught cathode. अब यहां पे प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, डिपेंडिंग, राइट? मैं चलो माइनस ही लेके चलता हूं, राइट? जो दिया रहता है E naught एनोड, राइट?
और वो तुम्हें पता होगा कि यहां पे माइनस क्यों किया, अगर प्लस कर लेते मान लो तो ये कैथोड पे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यहां पे हम लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं, राइट। चूंकि जनरली हमें ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है, एसआरपी के फॉर्म में दिया होता है, राइट, तो उसीलिए यहां पे एक हमने क्या कर दिया, माइनस साइन लगा दिया, और कुछ नहीं है। फॉर्मूला तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, बस अगर माइनस है इसका मतलब यहां पे हम लोग इसका एनोड पे वैसे ऑक्सीडेशन होता है, बट यहां पे हम लोग क्या लेंगे, एसआरपी लेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि वो एक माइनस साइन आगे लगा दिया है। और अगर प्लस होता, इन दैट केस एनोड पे हम लोग क्या ले लेते, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लेते हैं। देखो वैल्यूज यहां पे Sn+2 से Sn, मतलब ये भी रिडक्शन, और Cu2+ से Cu, ये भी क्या हो रहा है तुम्हारा, रिडक्शन है, मतलब दोनों का एसआरपी ही दे रखा है, राइट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सो इट इज बेटर टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, राइट। नाउ सी ई नॉट कैथोड, कैथोड पे हो क्या रहा है देखो, तो Cu is going to what, oh no sorry, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, राइट। सो Sn2+ is going into what, your Sn, right। तो Sn+2 Sn, मतलब this is what your minus 0.16 volt, right, okay। and E naught एनोड, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Cu से Cu+2, बेसिकली Cu+2 से Cu, तो ये 0.34 है। सो दिस इज व्हाट योर 0.34 वोल्ट, राइट। तो ये जब करोगे तो ये कितना बन जाएगा, -0.5 वोल्ट, राइट। बस अब तो हो गया। तो डेल्टा जी की जो वैल्यू है बेसिकली दैट वाज डेल्टा जी नॉट, राइट, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, -NF E नॉट। तो माइनस इंटू एन, एन कितना है, हाँ, तो अब एन पता नहीं चल रहा है, तो एन ऐसे तो पता कर सकते हो कि Cu 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और Sn2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, राइट। तो यहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नहीं तो हाफ रिएक्शन लिख के भी कर सकते हो। आई होप दिस इज व्हाट क्लियरली विजिबल हियर। सो आई एम टेकिंग n इक्वल्स टू व्हाट, 2 इनटू f कितना दिया रखा है, 96500। सो दिस व्हाट योर 96500 इनटू E नॉट की वैल्यू क्या है, -0.5, राइट, -0.5। सो दिस विल बिकम, अच्छा ये तो गया, तो इट विल बिकम व्हाट योर 96,500 व्हाट जूल। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन भी काफी सिंपल था, राइट। चलो आगे बढ़े। Now, the next question is what, question number 66. The internal energy change in joule, again, when 90 gram of water undergoes complete evaporation at 100 degree Celsius, right? ठीक है ना? वो बोल रहा है internal energy change, मतलब क्या बोल रहा है वो? आपको डेल्टा U निकालना है, right? ठीक है ना? For what? 90 gram of water which undergoes complete evaporation at 100 degree Celsius, and delta H vaporization is given, right? For water, and for 1 mole, so it is what, 41 kilojoule per mole, and this is given in kilojoule। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे आंसर आपको जूल में निकालना है, राइट। सो बस थोड़ा बहुत यूनिट का गेम हुआ यहाँ पे, राइट। एंड R इक्वल्स टू व्हाट, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, राइट। ठीक है, करते हैं। तो आपको पता है बेसिकली, पहले चलो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, मतलब रिएक्शन इन द सेंस यहाँ रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, एक्चुअली फेज चेंज हो रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है देखो, H2O, राइट। So this is what your H2, sorry, H2O, this is what liquid, right? That is getting converted into what? H2O vapor, right? ठीक है, vapor, or you can say gas, ठीक है। You know that there is a relation, thermochemistry में पढ़ा होगा, delta H equals to what? Delta U plus delta Ng into what? RT, right? This equation is given, right? ठीक, पहले 1 मोल के लिए निकाल लेते हैं। 1 मोल मीन्स व्हाट, 18 ग्राम, उसी को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने 90 ग्राम के लिए भी आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। सो फर्स्ट यू सी डेल्टा U for 1 mole change, of course it will be what, delta H minus delta Ng into what, RT। what is delta H per mole? 41 kilojoule, so it is what, 41,000, ठीक है ना। एंड माइनस डेल्टा Ng, तो डेल्टा Ng कैसे निकालते थे, जितने भी रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड चले जाओ, प्रोडक्ट साइड जितने भी नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सो दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट, राइट। सो हियर इट इज व्हाट 1 मोल एंड इट इज व्हाट 0, ये लिक्विड है, गैस नहीं है। तो यहां पे डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, राइट। सो -1 इनटू R की वैल्यू लोगे तो R इज गिवन 8.314 and into your what is given, this is what your temperature. So temperature is what your 373 Kelvin, right? So this is what your 373, ये आ गया। and ये तो पर मोल आया है बच्चा, ये तो 1 मोल के लिए है,
आपको निकालना क्या है 90 ग्राम, 1 मोल मीन्स व्हाट, 1 मोल ऑफ वाटर मीन्स व्हाट 18 ग्राम, तो एक्चुअली 90 ग्राम बेसिकली कितना हो जाएगा 5 मोल हो जाएगा, राइट। 90 ग्राम इज व्हाट योर 5 मोल्स। तो ये 1 मोल्स के लिए आया, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, इनटू क्या कर दो 5 कर दो, दैट विल बी योर आंसर, राइट। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। आई होप दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बस ये फॉर्मूला लगाना है, दिस फॉर्मूला इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से पूछे गए हैं, राइट, जेईई मेंस में। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। द रिजल्ट गिवन इन द फॉलोइंग बिलो टेबल were obtained during kinetic studies of the following reaction, right? ठीक है ना, 2a plus b gives you what ca plus d, and these are the experiments. x and y in the given table are respectively. इसमें तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखते हैं करना क्या है आपको। देखो ये इनिशियल जो हम लोग रेट एक्सप्रेशन निकालते हैं, राइट, इनिशियल रेट मेथड से, उसी के बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, जब एक का इफेक्ट देखना है तुम्हें, इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी समथिंग लाइक रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर m, सम पावर, दैट इज व्हाट योर रेट लॉ, राइट, एंड कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर व्हाट n, राइट। ठीक है ना, तो यही हमें पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m एंड n। वंस यू वी नो द वैल्यू ऑफ m एंड n, राइट, वी कैन कैलकुलेट द x एंड y, ठीक है। तो देखो यहां पे जब तुम्हारा B कांस्टेंट है, ठीक है, जब तुम्हारा B कांस्टेंट है बेसिकली, तो जब तुमने A को डबल किया, A को डबल किया, तो यहां पे देखो बेसिकली ये भी डबल हो जा रहा है, राइट। ये 10 पावर माइनस 2 है, 10 पावर माइनस 3 है, मतलब ये डबल हो जा रहा है एक्चुअली, राइट, ठीक है ना। या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 12 इंटू 10 पावर माइनस 3, राइट, ठीक है। सो दैट मीन्स जब इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो ये डबल हो जा रहा है, मतलब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m will become what your 1, simple, right? So it will become what your 1, मतलब जस्ट ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। नाउ करना क्या है, ये तो हो गया, कैसे किया देखो ध्यान से, मैंने फिर से बोल रहा हूं कि B को देखो कांस्टेंट रखो और A का चेंज देखो, तो A डबल हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो, इनिशियल रेट आपका क्या हो गया, डबल हो गया, राइट। और डबल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये -2 है या -3 है, तो थोड़ा केयरफुल रहना है। तो इसका मतलब जो CA का पावर होगा वो क्या होगा, ऑर्डर CA के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर B का देखना है तो मैं क्या करूंगा, A को देखते हैं कांस्टेंट रखें, तो A कहां कांस्टेंट है, यहां देखो A कांस्टेंट है, B को जब तुमने डबल किया तो रेट कितना हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है, राइट। इसका मतलब ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B विल बिकम व्हाट योर 2, राइट। बस हो गया, इसके बाद तो और कुछ क्वेश्चन में नहीं है सच, राइट। तो ये तो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हो गया। अब देख लेते हैं, देखो इस केस में तुम देखो, ऐसे देख लो आप कि लेट्स टेक वेयर द B इज व्हाट कांस्टेंट, राइट, ठीक है ना। देखो जैसे मैं इसको पकड़ता हूं, यहां पे देखो B कांस्टेंट है और A तुम्हारा क्या हुआ है, और रेट ऑफ रिएक्शन देखो, तो अच्छा इसको ले, या फिर वैसे तो वैसे भी निकाल सकते हैं, बट देखो ये तुम्हारा, हाँ B कांस्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तुम्हारा 3 टाइम्स हुआ है, राइट, 3 टाइम्स हुआ है ना, और A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 1 है। इसका मतलब ये भी कितना टाइम्स होगा, 3 टाइम्स ही होगा, राइट। कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स करोगे, अगर B का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है तो चूंकि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A इज 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, राइट। तो यहां पे x की वैल्यू तो 0.3 हो गई, x की वैल्यू 0.3 हो गई, तो ये दोनों ऑप्शंस हटा दो, ठीक है। नहीं करना है तो वैसे इसमें भी पुट करके कर सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ सो x इज व्हाट योर 0.3, तो x को मैं लिख देता हूं 0.3, राइट। अब इसी दोनों को पकड़ लो, 0.3 0.3 ये तो फिक्स है। अब यहां देखो तुम, तो ये बेसिकली क्या हुआ है, ये 28.8 हो जाएगा बेसिकली, तो ये हो गया तुम्हारे पास 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स कब होगा, जब B का कॉन्सेंट्रेशन, कीपिंग ए कांस्टेंट, B के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करोगे, डबल करोगे, तभी ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, राइट। सो हियर इट विल बिकम व्हाट योर 0.4 ना, क्योंकि इसको डबल करोगे तभी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 4 टाइम्स होगा। तो ऐसे भी कर सकते थे, इनफैक्ट बिना ये निकाले हुए भी कर सकते थे। तो व्हाट विल बी द आंसर, ये तो होना नहीं था, सो फर्स्ट विल बी द आंसर, राइट, ओके। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 67 फॉर यू। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, which one of the following graphs is not correct, right? So they are asking not correct, right, or okay, not correct, ठीक है।
और ग्राफ किसके किसके बीच है, डी और टी के बीच में, राइट, ठीक है ना। मतलब डी का आना चाहिए, देखो एक तो तुम्हें पता है पीवी इक्वल्स टू व्हाट एनआरटी, उसी से तुम ये भी प्रूव कर सकते हो पीएम इक्वल्स टू व्हाट योर डी आर टी, ठीक है। अब डी वर्सेस टी का ग्राफ देखो, तो डी वर्सेस टी का ग्राफ क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी इज इक्वल्स टू व्हाट, कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, राइट, पीएम बाई आर इंटू 1 बाई टी, डी टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ये ग्राफ तो सही है, दिस इज व्हाट राइट। डी बाई टी मतलब अगर ये सही है तो ये सही नहीं, एक ही ग्राफ होगा ना, तो मतलब इसी दोनों में से कोई गड़बड़ होगा, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक्सप्रेशन देखो तो d इंटू टी कॉन्स्टेंट आ रहा है और ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, राइट। सो दैट मींस दिस विल बी योर आंसर, फाइन। सो ये सही है, ये तो गलत है, विच विल बी योर आंसर, सो दैट मींस सेकंड ऑप्शन इज देयर, मतलब ये आंसर होगा। बाकी देख लेते हैं, d 1 बाई टी, अगर d 1 बाई टी का ग्राफ देखो तो d इक्वल्स टू क्या है, tm बाई आर इंटू 1 बाई टी, राइट, ठीक है ना। सो दिस व्हाट योर y इक्वल्स टू mx, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3, राइट, मतलब ये सही है ग्राफ। और d वर्सेस p का ग्राफ देखो तो pm इक्वल्स टू व्हाट drt है, तो वो फिर से देख लेते हैं, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m बाई आर टी इंटू व्हाट p, तो वही y इक्वल्स टू फिर से mx वाला एक टर्म बन रहा है, मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन, तो ये भी सही है, मतलब ये भी ग्राफ सही है। सो आंसर विल बी व्हाट योर 2, which because they are asking the question what not correct, right। और d versus t का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, that will be rectangular hyperbola, that you can see easily from this particular equation, right। So question number 68 done. Now we are moving to question number 69. The size of a raw mango shrinks to a much smaller size when kept in a concentrated salt solution. Which one of the following process can explain this, right? It's a very simple question. I'm sure you know that this is what your osmosis, right? Okay. तो ये तो किया ही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सबसेल्स एसोसिएटेड, सबसेल्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो सबसेल्स मींस व्हाट, इधर इट इज व्हाट एस, देन इधर पी डी और व्हाट एफ और जी एच, यू कैन प्रोसीड लाइक दैट आल्सो, राइट। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, n इक्वल्स टू 4, अगर n इक्वल्स टू 4 है आपका, राइट, तो l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 टू n माइनस 1, दैट मींस l की वैल्यू पॉसिबल है 0, l की वैल्यू पॉसिबल है 1, l की वैल्यू पॉसिबल है 2, l की वैल्यू पॉसिबल है क्या 3, राइट। फॉर दिस l व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ml, तो ml की वैल्यू यहां पे क्या है माइनस l टू l होता है, तो ओनली 0 वैल्यू इज पॉसिबल। फॉर हियर ml इज व्हाट योर -1 0 एंड व्हाट +1, फॉर हियर ml इज व्हाट -2 टू +2, एंड हियर ml विल बी व्हाट -3 टू +3, -2 -1 0 +1 +2, and here it is what -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, right। now what they are asking that m equals to -2 क्वांटम नंबर, तो ये दोनों तो देंगे नहीं सबसेल, तो इनको तो हटा दो। क्या ये देगा सबसेल m इक्वल्स -2, यस ये देगा, ये भी देगा, इसमें भी -2 आएगा, राइट, ठीक है ना। तो ये एक देगा और ये एक देगा, मतलब कितने सबसेल हो गए तुम्हारे पास, 2, एक हो गया d, दूसरा क्या हो गया f, राइट। सो 2 सबसेल्स आर देयर which have associated with what, n equals to 4 and m equals to -2. So answer will be what, your third. So this was your question number 70, right? Okay. A quantum number is very important topic. Multiple questions can be asked, right? ठीक है ना? So in fact काफी अच्छे questions भी उन्होंने पूछे हैं, ठीक है? Quantum number पे. It's a simple topic. Now moving forward, question number 71. The ratio of the mass percentage of C and H and C and O of a saturated acyclic organic compound, right? Saturated acyclic organic compound. X are 4:1 and 3:4 respectively, then the moles of oxygen gas required for complete combustion of 2 moles of organic compound X is, right? ठीक है। तो देखो सबसे पहला तो क्या है, ये मास परसेंटेज है, राइट, ठीक है ना। तो मास परसेंटेज इसका मतलब क्या है, कार्बन का कितना होता है, दैट इज व्हाट योर 12, राइट, एंड हाइड्रोजन इज व्हाट योर 1, राइट। अब देखो मास मींस व्हाट, कि कार्बन अगर 4, कार्बन और हाइड्रोजन का कितना है, C:2S, C:2H इज व्हाट योर 12, नो सॉरी 4:1, राइट। सो इट इज व्हाट योर 4:1, ठीक है ना। इसका मतलब अगर कार्बन 1 होगा, अगर कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन विल बी व्हाट योर 3, समझ में आ रहा है, 4:1 है ना। तो अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन क्या होगा 3, 12:3, मास का रेशियो, मास परसेंटेज का रेशियो, परसेंटेज में घबराना नहीं है, वो एक ही बात है। देखो ऐसे देख लेते हैं, 12 है मान लो, अपॉन सम मास पर टोटल मास विल बी देयर, अपॉन हाइड्रोजन का इनटू क्या कर दो 100 कर दो, फिर हाइड्रोजन का मास क्या है यहाँ पे 3 है,
अपॉन टोटल मास तो दोनों के लिए सेम ही होगा, इनटू 100 कर दो, राइट? तो ये तो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, सो रेशियो विल बिकम व्हाट योर 4:1, राइट? बस, तो 4:1 का मतलब है अगर मास रेशियो आपका 4:1 है, इट मींस कि कार्बन के अगर एक एटम होंगे तो हाइड्रोजन का 3 एटम होगा फॉर श्योर. यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ कमिंग टू दिस, व्हाट इज द रेशियो फॉर व्हाट योर, what is the ratio for carbon and oxygen? So C:O जो रेशियो है, that ratio is basically what 3:4. मतलब अगर कार्बन 12 ग्राम है, सपोज कार्बन का एक एटम है, 12U ले लो, राइट? ठीक है ना? तो 12U है, मतलब ऑक्सीजन कितना होगा? कार्बन का अगर मास 12 है तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16, तभी तो रेशियो 3:4 होगा. और कार्बन का मास 12 का मतलब कार्बन का एक एटम, तो ऑक्सीजन का भी कितना होगा? 1 एटम होगा, राइट? तो कार्बन का जब एक एटम है तो ऑक्सीजन का एक एटम, उस केस में कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा वो 3:4 होगा. और कार्बन का जब एक एटम और हाइड्रोजन का 3 एटम, उस केस में कार्बन और हाइड्रोजन का मास का रेशियो क्या होगा? 4:1 होगा, राइट? दैट मींस नाउ यू हैव द एम्पिरिकल फॉर्मूला, एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला इज बेसिकली व्हाट योर CH3O, राइट? दिस इज व्हाट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट? ठीक है. बट CH3O तो एग्जिस्ट, दैट विल नॉट एग्जिस्ट, सैचुरेटेड असाइक्लिक कंपाउंड तो नहीं होगा, राइट? ठीक है ना? So that means what? This is empirical formula. So what you have to do? You have to multiply it, right? And when you have to multiply it, so that means what can be the formula, the exact molecular formula? तो देखो ये CH3O है, तो इसको multiply 2 से कर दो, तो एक क्या बन जाएगा तुम्हारा? C2H6O2, right? अगर 3 से multiply किया, right? इसको 2 से multiply कर दो, 3 से multiply करोगे तो ये क्या बन जाएगा? C3H9NO3, right? ठीक है, इस तरह से. Now you know डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है ना? एक फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में. इसमें अगर कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या करेंगे? 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन, राइट? 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन, राइट? प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, राइट? वैसे अगर X और H भी रहेगा तो हैलोजन के केस में माइनस नंबर ऑफ हैलोजन प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 2 करते हैं, राइट? ऑक्सीजन सल्फर हो भी मॉलिक्यूल में तब भी इस फॉर्मूले में नहीं आता है, राइट? There is a reason for that, but I'm not going in that detail, right? थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा, right? So 2 into number of carbon plus 2 minus number of hydrogen, कि ऑक्सीजन फॉर्मूले में क्यों नहीं है, हैलोजन फॉर्मूले में क्यों है, हैलोजन में माइनस क्यों हो रहा है? थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं, कोशिश करना. हैलोजन माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि हैलोजन की वैलेंसी 1 है, राइट? ठीक है ना? और जो आपका नाइट्रोजन उसकी वैलेंसी 3 है, राइट? और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2 है, राइट? ठीक है. So 2 into number of carbon plus 2 minus number of hydrogen divided by what? 2 for this, क्योंकि हैलोजन भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है और ऑक्सीजन तो हम लेते ही नहीं है, राइट? या सल्फर भी नहीं लेते हैं. तो अगर तुम इस केस में देखो, इस केस में, इन दिस केस इफ यू सी, बेसिकली 2 into 2 4 plus 2 minus 4 plus 2 6 minus 6, that is what? 0. So here degree of unsaturation is what? 0. That means this is what your saturated acyclic organic compound. And if it is saturated acyclic organic compound, right, then in that case what you can do, simple, C2H6O2 आ गया आपके पास प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना? कंप्लीट कंबशन करवाना है आपको, so that will give you what? CO2 and that will give you what? Your H2O, ठीक है? बस इसको बैलेंस कर लेना है बच्चा. तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? दिस विल बिकम व्हाट योर 3. कार्बन को बैलेंस करो, दिस व्हाट योर 2. अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो तो 2 4 3 7 7, मतलब 2 तो यहां ऑलरेडी हैं. ओके, सो दिस विल बिकम व्हाट योर 2.5, राइट? यही हो जाएगा. 2.55 प्लस 2 7 2 2 4 3 7 3 2 6 कार्बन, यस. अब वो क्या बोल रहा है? इसके 2 मोल्स चाहिए, इसके 1 मोल के लिए आपके पास 2.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए फॉर कंप्लीट कंबशन. तो 2 मोल्स के लिए कितना होगा? चाहिए होगा 2.5 into 2, that is what your 5 moles, right? 5 moles of oxygen will be required. So again, this was question number 71. Question number 72, right? अच्छा, एक चीज और, मैं C3H9O3 क्यों नहीं देखना? वहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पॉजिटिव में नहीं आएगा, वो नेगेटिव में चला जाएगा, राइट? ठीक है ना? सो दैट विल नॉट बी द आंसर. द आंसर विल बी व्हाट योर बेसिकली C2H6O2, राइट? ठीक है. ओके, नाउ और उसके आगे भी जाओगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो हमारा जो C2H6O2 होगा वही आंसर होगा, राइट? ठीक है. चलो
Now going forward, question number 72 for the disproportionation reaction. You know what is disproportionation reaction? ठीक है ना, एक ही का ऑक्सीजन स्टेट बढ़े भी और उसी का घटे भी, राइट? ठीक है ना, मतलब कि this is what your Cu plus है, so that is going into what Cu plus 2 and this is what you're going to what Cu, right? So इसका बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसी का क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, राइट? So you can call it what, this is what example of disproportionation, right? इसी को अगर मैं ऐसे कर दूं तो this is the example of what, Cu plus 1. This is the example of comproportionation reaction, right? That is what reverse of disproportionation. Well, I hope you know this, right? Now, इसको एक बार लिख लेते हैं अपन. तो Cu plus है basically, that is going into what? That is going into what? Cu solid ले लो, right? ठीक है ना? So this is what your reduction half reaction you can say, and Cu plus aqueous, that is going into what, your Cu plus 2 aqueous, right? This is what oxidation half reaction. तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन यहां ऐड कर दो, और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड कर दो, राइट? एंड व्हेन यू विल ऐड दीज टू रिएक्शंस यू विल गेट द दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, राइट? ठीक है, अब इसी में वो क्या बोल रहा है कि एट के ln k where k is the equilibrium constant, तो आपको k निकालना है, राइट? तो k कैसे निकालते हैं? देखो ये तुमने पढ़ा होगा, डेल्टा g इज इक्वल्स टू व्हाट, अगेन ये वाला भी हमने देखा भी था थोड़ी देर पहले, डेल्टा g नॉट प्लस RT ln q. q is reaction quotient when q will become equals to what, k. q जब k के इक्वल होगा, at that point of time equilibrium will be there, and equilibrium you know that delta g will be what, 0, right? तो delta g 0 हो गया. Once delta g 0, q will become equals to what, k. In that case it will become what, your delta g naught is equals to what, minus RT ln k. And you know that delta g naught equals to what, minus NF E naught is equals to minus RT ln k, right? So this is what cancel out, and what they are saying, they are saying to find ln k. तो ln k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ln k will be what, your NF E naught upon what, R into what, T. बस ये निकालना है आपको, ठीक है? तो n की वैल्यू तो 1 है, वो तो साफ दिख रहा है, इसको मैं हटा रहा हूं अभी, राइट? ठीक है ना? चलो, तो E नॉट हमें निकालना है सेल. तो E नॉट सेल के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखो ये भी तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल है और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, राइट? ठीक है ना? तो Cu प्लस से Cu जा रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.52 है, तो E नॉट कितना हो जाएगा? दैट इज व्हाट, 0.52. दैट इज व्हाट योर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, मतलब SRP ऑफ कैथोड, राइट? ठीक है ना? और Cu प्लस तुम्हारा किस में जा रहा है? Cu प्लस 2 में, राइट? दैट इज व्हाट योर ऑक्सीडेशन. लेकिन इसका दिया हुआ है तुम्हारे पास रिडक्शन पोटेंशियल, तो बस क्या करना है, इसको माइनस 0.16 कर दो, राइट? ठीक है ना? सो दिस विल बिकम व्हाट योर 0.36 वोल्ट, राइट? तो ये आ गया तुम्हारे पास 0.36 वोल्ट. ओके, RT by F दिया हुआ है तुम्हें, राइट? RT by F इज गिवन व्हाट, 0.025, राइट? तो ln k की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं. सो पुट इट दैट E नॉट सेल आ गया आपके पास 0.36 इंटू n तो 1 ही है, राइट? तो इसको छोड़ दो, और RT by F, राइट? RT by F इज बेसिकली व्हाट, 0.025. 0.025, तो ये 360 कर लो, इसको हटाओ, तो ये कितना आ जाएगा? सही कर रहे हैं ना? 0. Cu प्लस से Cu रिडक्शन पोटेंशियल 0.52 माइनस इसका, तो 0.36, राइट? ओके, तो एंड 0.025 RT by F, ओके, दैट्स करेक्ट. तो बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 5 हो गया, ये 72 हो जाएगा, राइट? और ये कुछ 14.4 के आसपास आ जाएगा ln k, राइट? ठीक है, लेकिन आपको लेना क्या है, 10⁻⁻1 में, मतलब ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, 144. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 144 इंटू 10⁻⁻1. सो आंसर विल बिकम व्हाट, योर 144, राइट? ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 72. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है, देखो, amongst the following statements regarding adsorption those that are valid. तो इनमें से आपको वैलिड स्टेटमेंट्स देखते हैं. डेल्टा H becomes less negative as adsorption proceeds, राइट? ठीक है ना? तो ऑब्वियसली डेल्टा H कम नेगेटिव होगा जैसे जैसे एडजॉर्प्शन होगा बेसिकली, ठीक है ना?
तो जो साइट्स हैं वो तो ऑक्यूपाइड होते चले जाएंगे, राइट? तो एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे कम रिलीज होगी, राइट? ठीक है ना, रिलेटिवली कम रिलीज होगी. सो पहला वाला तो सही है, राइट? दिस ए इज करेक्ट. मान लो अगर तुम्हें ए पे कंफ्यूजन है, मान लो फॉर अ मोमेंट, राइट, ऑन अ गिवन एडजॉर्प्शन विच इज नॉट, ए इज करेक्ट, राइट? ठीक है ना, डोंट वरी. बट अगर कंफ्यूजन है तो मैं एग्जाम में बोल रहा हूं कैसे अप्रोच करना है, ठीक है? जरूर मान लो ए तुम्हें नहीं पता हो, राइट? बी सबको पता होगा, इसमें इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे. ऑन अ गिवन एडजॉर्बेंट अमोनिया इज एडजॉर्ब्ड मोर देन व्हाट, नाइट्रोजन गैस, राइट? ठीक है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा उसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा. एंड यू नो दैट अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नाइट्रोजन में वन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर, राइट? तो अमोनिया का एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा. दैट मींस बी इज करेक्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, राइट? एंड इफ बी इज करेक्ट दैट मींस व्हाट, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 इज नॉट पॉसिबल, राइट? ओनली द पॉसिबिलिटी इज व्हाट, 1 एंड 3. दैट मींस अगर तुम यहां पे देखो तो डी ऑप्शन इज with increase in temperature the equilibrium concentration of adsorbate increases. No, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे, राइट? ठीक है ना, सो डेल्टा एच इज नेगेटिव, राइट? तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एडजॉर्प्शन विल डिक्रीज, एडजॉर्प्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो मतलब एडजॉर्बेट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट विल व्हाट, डिक्रीज एक्चुअली ऑन द सर्फेस ऑफ एडजॉर्बेंट, राइट? इट विल नॉट इंक्रीज. सिंपल लीचेटलिस प्रिंसिपल, राइट? सो डी इज रॉन्ग. ओके, A was correct, B was correct. On adsorption, the residual forces acting along the surface of the adsorbent increases. कैसे? जैसे जैसे वो जो residual force है, जैसे जैसे वो residual force होते क्यों हैं? मतलब जो टॉप के जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे उसकी अपनी जो वैलेंसी है वो फ्री वैलेंसी है, राइट? ठीक है ना, उसको तो कोई सेटिस्फाई कर नहीं रहा है. जैसे जैसे यहां पे एडजॉर्बेट आते चले जाएंगे, राइट, रेसिडुअल फोर्स बेसिकली क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, राइट? सो इट विल नॉट इंक्रीज, एक्चुअली इट विल व्हाट, डिक्रीज. सो आंसर विल बी ए एंड बी. वेयर इज ए एंड बी? हियर. सो दिस विल बी व्हाट योर, सो आंसर विल बी 3, राइट? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 73 फॉर यू. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, question number 74, the work function of sodium metal is what, 4.41 into 10 to the power minus 19 joule. If photons of wavelength 300 nanometer are incident on the metal, the kinetic energy of the ejected electron will be, right? तो photoelectric effect का क्वेश्चन है, सिंपल है, राइट? क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट, आपको भी पता है कि h न्यू माइनस h nu naught. And what is h nu naught basically? So h nu naught is basically what, your work function, which is given here 4.41 into 10 to the power minus 19. But इसको मैं 441 into 10 to the power minus 21 लिख रहा हूं क्योंकि मुझे आंसर 10 to the power minus 21 के पावर में निकालना है, राइट? So I'm just writing it here like this, hc by lambda. इसको इसलिए क्यों किया, क्योंकि lambda में मुझे वैल्यू दे रखी है, न्यू की वैल्यू नहीं दे रखी है. एंड h nu naught को मैंने ऐसे लिख लिया, that is what, your 441 into 10 to the power minus 21, right? h की वैल्यू दे रखी है, यस, 6.63 into 10 to the power minus 34 into c is what, 3 into 10 to the power 8 upon lambda. Lambda is what, basically it's given 300 nanometer. तो चेंज कर लो उसको, तो 300 into what, 10 to the power minus 9. ठीक है ना, ऐसा यूनिट में देना है. अब देखो इसको और इसको 10 to the power minus 7 हो गया, इस -7 को ऊपर ले जाओ तो 7 हो गया. तो ये बेसिकली क्या हो गया, 8 + 7 15 हो गया. 15 और 34 को तुम क्या करो तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली 19 हो जाएगा, राइट? यू आर गेटिंग दिस? क्या किया, ये 7 हो गया, ऊपर ले गए तो ये 15 हो गया, -7 था ऊपर गया, +7 हो गया, +7 + 8 +15 हो गया, +15 - 34, दैट इज व्हाट, योर -19. और 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया. बेसिकली इट इज बिकमिंग व्हाट, 6.63 into 10 to the power minus 19. लेकिन मुझे अगेन चाहिए 10 to the power minus 21 में, तो मैं इसको कैसे लिख लूंगा, 663 into 10 to the power minus 21. बस, अब तो कुछ नहीं है, मतलब इसका मतलब हो गया कि दिस इज व्हाट, योर बेसिकली 663 minus 441, मतलब ये आ जाएगा 222 into 10 to the power minus 21, राइट? तो अगेन इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेशन भी बहुत इजी था इसके लिए. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, question number 75, the heat of combustion of ethanol into carbon dioxide and water is what, -327 kilocalorie at constant pressure. At constant pressure मतलब QP is basically what, delta H, and at constant volume that is what, your QV, right? QP is what, your delta H, and QV is basically what, your delta U, right?
तो ये तो पता होगा। तो आपको एक्चुअली उन्होंने QP मतलब डेल्टा H दे रखा है और वो पूछ क्या रहे हैं, हीट इवॉल्व्ड इन कैलोरी, राइट। डेल्टा H किलो कैलोरी में पूछ रहा है, कैलोरी में एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट मींस वो एक्चुअली आपसे डेल्टा U पूछ रहा है, राइट। एंड यू नो द इक्वेशन, वी हैव ऑलरेडी डन दैट इन दिस पर्टिकुलर क्लास, राइट। At constant volume and 27 degree Celsius, if all gases behave what ideally, of course, basically ये जो इक्वेशन है डेल्टा H इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT, राइट। सो दिस इक्वेशन हैज कम फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, राइट। H इक्वल्स टू व्हाट, U प्लस व्हाट, PV, और डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, और PV इक्वल्स टू nRT रखोगे तो मतलब PV इक्वल्स टू nRT इज ट्रू फॉर ओनली व्हाट, आइडियल गैस, राइट। ओके फाइन। सो नाउ रिमूव इट। अब देखो इसके लिए क्या करना है, हमें निकालना क्या है, बेसिकली वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड डेल्टा U, डेल्टा H इज गिवन, राइट, टेम्परेचर इज गिवन, राइट, 27 डिग्री सेल्सियस, R इज गिवन 2 कैलोरी, राइट, ठीक है ना। डेल्टा Ng निकालना है, डेल्टा Ng के लिए पहले हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा, तो रिएक्शन क्या लेंगे, सो दिस इज व्हाट योर C2H5, इथेनॉल इज देयर, राइट, सो इट इज व्हाट योर C2H5OH, क्या लेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस पे इथेनॉल लिक्विड स्टेट में होगा, राइट, सो इट विल बी इन लिक्विड स्टेट, राइट, प्लस ऑक्सीजन, राइट, एंड द हीट ऑफ कंबशन, तो कंबशन करना है तो बन क्या रहा है आपका CO2, ये भी गैस ही होगा, O2 भी गैस ही होगा, और वाटर है तुम्हारे पास, राइट। सो वाटर विल बी लिक्विड, राइट, व्हाई आई एम सेइंग लिक्विड, बिकॉज अगेन टेम्परेचर इज व्हाट 27 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर वहां पे लिक्विड स्टेट में होगा। जरूरी है, क्यों जरूरी है, मान लो 127 रहता है, इन दैट केस वाटर तुम्हारा क्या हो जाता, वेपर स्टेट में हो जाता, राइट, ठीक है ना। तो डेल्टा Ng की वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर तुम H2O को गैस लोगे या लिक्विड लोगे, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सो टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट हियर, राइट। ओके नाउ अभी काम खत्म नहीं हुआ है, बैलेंस करना है, बैलेंस करना भूलना नहीं है, तो कार्बन को बैलेंस करो तो दिस व्हाट यू 2, और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन को बाद में देख लेंगे, तो 6 है ये, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 3 हो गया, राइट। यहां पे एक ऑक्सीजन ऑलरेडी है, 4 + 3 7, मतलब एक ऑलरेडी तो 6 चाहिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको अपने को देखना नहीं है डेल्टा Ng के लिए, इसको अपने को देखना नहीं है, डेल्टा Ng क्या हो जाएगा 2 - 3 मतलब -1 हो जाएगा, राइट। तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आ गई, मतलब इसमें डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आ गई, -1, राइट, क्लियर है। तो इसको मैं हटा रहा हूं, डेल्टा Ng विल बी व्हाट योर -1, राइट। सो डेल्टा U इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा H minus delta Ng was what, -1 into 2 is what your R, and T temperature हमेशा क्या लेना है हमें, केल्विन में, right, so it will become what your 300, right, and ये तो कैलोरी में आ रहा है, देखो 2 कैलोरी है ना, and this is basically what your delta H will what your किलो कैलोरी, right, तो किलो कैलोरी को कैलोरी में चेंज कर लो, so this will become what your, कहां गया डेल्टा H, कहां है, -327, right, so this will be what your -327,000, right, okay, and this is what your calorie, और ये हो जाएगा +600, right, this is what your calorie, right, तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी तुम्हारी -326,400 calorie, right, so this will become what your heat evolved, right, ठीक है ना, delta U. So again I'm saying this equation is important for your JEE mains, right, okay, the questions are coming. Now moving forward, 76, which of the following is used for the preparation of colloids, right, okay, so you know that Bredik's arc method, right, okay, ठीक है, Van Arkel and Mond, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत है, Ostwald प्रोसेस भी छोड़ो, सिंपल, इट इज व्हाट ए Bredik's arc method, राइट, ये सब फर्स्ट 2 प्रोसेस तुमने मेटलर्जी में पढ़ा होगा, राइट, ठीक है ना। नाउ इट इज ट्रू दैट, क्वेश्चन नंबर 77, राइट, it is true that a second order reaction is always a multi-step reaction, not necessary, right, elementary reactions भी हो सकते हैं, ठीक है ना। A first order reaction is always a single step reaction, again not necessary, right, ठीक है। A zero order reaction is a multi-step reaction, yes, देखो क्यों multi-step reaction, क्योंकि अगर zero order reaction आपका elementary reaction हुआ, right, in that case molecularity क्या हो जाएगी, molecularity तो चलो 1 हो गई, मान लो suppose let's say A is converting into product, right, and it's a zero order reaction in that case, and it's a single step reaction if I say, right, in that case basically what molecularity is what 1, right, but the order is what 0,
and for elementary reaction you know that molecularity will what match with order, right? Okay, so that means it's not possible. So a zero order reaction will be definitely, it will be a multi-step reaction. So answer will be 3. I hope you are getting this point right. Okay, there are 3 points that is given in NCERT when they have explained molecularity. Just go and read those 3 points at the end of molecularity. जहां से रेट लॉ उन्होंने शुरू किया जस्ट उसके ऊपर देखना, राइट? NCERT में 3 पॉइंट्स हैं, उन 3 पॉइंट्स को पढ़ो जो भी मैंने बोला है. आई होप those points will be very clear to you, right? Okay, fine. Moving forward, question number 70. What? Question number 78. An acidic buffer is obtained on mixing, right? तो acidic buffer है. acidic buffer होता क्या है? acidic buffer is basically what? You have weak acid and salt of weak acid and what? Strong base, right? तो options देखते हैं. पहले option को देखो तो basically HCl है, right? And here it is what? Your CH3COO Na, right? So will it react? Yes, it will react because this is what, a strong acid and it's a salt of what? A strong base and weak acid. It means it's a basic salt, right? तो ये basically क्या हो जाएगा तुम्हारा? This will form what? CH3COOH plus what? Your NaCl, right? अब देखो molarity क्या होता है? Molarity is number of moles upon volume in liter, right? Or you can say number of millimoles upon volume in milliliter, right? तो molarity को तुम ऐसे भी बोल सकते हो, number of millimoles of solute upon volume in what? ml. ml तब जब यहां पे क्या है? millimole है, right? So it's again simple. मतलब molarity को जब तुम volume से multiply करोगे ml तो you will get what? Number of millimoles, right? ठीक है. Okay, so find 100 into 0.1, right? That means you have what? 10 millimoles. इसके 10 millimoles है, right? और CH3CONA के कितने millimoles है? 20 millimoles है, right? Okay, so of course this is what in excess. तो इसका 10 रिएक्ट किया, इसके 10 से ही रिएक्ट करेगा, right? Because ऑलरेडी बैलेंस्ड, right? इसका 0 था, इसका 10 बनेगा, 10 millimoles इसके भी बनेंगे, right? And final situation will be what? You have 0 millimoles of HCl, you have 10 millimoles of what? Your CH3CONA, you have 10 millimoles of what? CH3COH. That means you have weak acid and salt of that weak acid and a strong base. That will give you what? Your acidic buffer. So yes, answer will be first, but we will see other options also, right? Just quickly we will see, right? Okay. So you know the concept now. 100 ml of 0.1 MnCl and 200 ml of 0.1 MnCl. यहाँ तो reaction ही नहीं होगा. NaCl is what? It's a salt of strong acid and strong base, right? तो HCl as it is पड़ा रहेगा. So this is not acidic buffer definitely. So this is not the answer. 100 ml of 0.1 m CH3COH and 100 ml of 0.1 m NaOH. देखो यहां पे अगर देखोगे तो बेसिकली क्या इसका भी 10 मिलीमोल है और इसका भी क्या है 10 मिलीमोल, राइट? सो दे बोथ विल रिएक्ट कंप्लीटली और फाइनली क्या बचेगा देख लो एक बार. सो दिस इज व्हाट योर CH3COOH plus NaOH, right? That will give you CH3COONA and plus what your H2O, right? तो इसके 10 मिलीमोल्स हैं, इसके भी 10 मिलीमोल्स हैं, दोनों एक दूसरे से कंप्लीट रिएक्शन होगा और केवल तुम्हारे पास क्या बचेगा? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड weak acid and strong base, yes, right? So that means this is also not the example of what your acidic buffer, right? In fact it is not a buffer, right? Leave it acidic, buffer भी नहीं है, right? ठीक है ना? चलो fourth, 100 ml of 0.1 m CH3COH and 200 ml of 0.1 m NaOH. देखो NaOH तुम बढ़ाओगे तो क्या होगा? ये तो सारा का सारा रिएक्ट कर जाएगा, बाकी NaOH पड़ा रहेगा, तो मतलब CH3CONA मतलब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा हुआ है. दैट इज आल्सो नॉट बफर, राइट? ठीक है ना? सो आंसर विल बी 1. दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 78, राइट? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 79. द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन एन एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन इज 0.1. द मास परसेंटेज ऑफ वाटर इन इट टू द नियरेस्ट इंटीजर. देखो जब भी मोल फ्रैक्शन दिया हो, राइट? ठीक है ना? तो मान लो टोटल मोल्स क्या है? 1 है तुम्हारे पास, राइट? टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन, टोटल मोल्स अगर आपके पास 1 है, राइट? तो ग्लूकोज के मोल्स कितने हो जाएंगे? सो ग्लूकोज इज C6H12O6. इसके मोल्स हो गए तुम्हारे पास 0.1 मोल. तो वाटर के मोल्स कितने हो गए? 0.9 मोल्स, राइट? ठीक है ना? तो टोटल मोल 1 हो गया और मोल फ्रैक्शन वही होगा जो नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमने टोटल मोल 1 लिया है. टोटल मोल मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज व्हाट? 1, राइट? ठीक है. आप कुछ नहीं है इसमें, मास परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है आपको. तो परसेंटेज ऑफ वाटर मास परसेंट
मास परसेंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? सो इट विल बिकम व्हाट योर 0.9 इंटू 18 अपॉन 0.9 इंटू 18 प्लस 0.1 इंटू 180, राइट? ग्लूकोज का 180 होता है 72 12 84 प्लस 10 नो साइड 96, तो 96 प्लस 84 दैट इज व्हाट 180। वैसे याद होता है ना, ग्लूकोज का याद रखो 180 होता है, सॉरी सुक्रोज का 342 होता है, राइट? ठीक है, चलो तो बस इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है? और परसेंटेज है तो इनटू 100 भी करना पड़ेगा ना, ठीक है? तो देखो 18 तो कैंसिल आउट हो रहा है ना, लग रहा है ना 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 यहां से गया यहां से गया और ये पूरा चला गया। 0.1 इंटू 180 विल बी व्हाट 18। ऑफ कोर्स यहां पे 1 आ जाएगा, ये सब गलती मत करना। ऐसे ले लेते, चलो इसको 18 ही ले लेते हैं, तो 18 कॉमन ले लो, तो 18 इंटू 0.9 अपॉन 18 इंटू 0.9 प्लस 1, राइट? ठीक है ना, एंड इंटू क्या कर दिया तुमने 100 कर दिया, तो ये 18 गया, सो दिस विल बिकम व्हाट योर 9 अपॉन 1.9 नो 9 अपॉन 19 इंटू व्हाट 100, तो ये आ जाएगा 900 अपॉन व्हाट 19। तो बस इसको कैलकुलेट कर लो, नियरेस्ट इंटीजर है, राइट? ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, सही कर रहे हैं ना कैलकुलेशन में, तो कुछ एरर नहीं किया, राइट? 18 हो गया ये 18, और कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 0.9, ठीक है ना, तो ये 0.9 अपॉन 1.9, तो 9 अपॉन 19 हो गया, ठीक है? तो ये कितना हो गया, मतलब 47% के आसपास आ जाएगा, 47.4 है तो 47% के आसपास आ जाएगा, राइट? ठीक है ना, टू द नियरेस्ट इंटीजर बोल रहा है वो, राइट? ठीक है, सो आई होप यू विल बी एबल टू कैलकुलेट इट, द आंसर विल बी व्हाट योर 47%। नेक्स्ट, this is the last question. The volume strength of 8.n m a 9 m H2O2 solution calculated at 273 Kelvin and 180 m. देखो 273 Kelvin and 180 m is basically what? So it is earlier STP. और earlier STP पे आपको पता है कि अगर कोई आपके पास 1 मोल गैस होता था, 1 मोल गैस होता था, राइट? उसका जो वॉल्यूम होता था that was what your 22.4 लीटर, राइट? जो लेटेस्ट एसटीपी है वो 180 m को चेंज कर दिया गया 1 बार में, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.7 लीटर, बट बिकॉज दे आर सेइंग 273 केल्विन एंड 180 m दैट इज व्हाट अर्लियर एसटीपी, तो यहां पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर, राइट? नाउ सी व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर मैं बोलूं xv, इसका क्या मतलब है समझो। xv का मतलब ये है कि सपोज दिस इज व्हाट द इक्वेशन 2H2O2, राइट? ठीक है ना, एंड दैट इज गिविंग यू 2H2O एंड प्लस O2, राइट? ठीक है ना, तो वो ये बोल रहा है कि अगर तुमने इसका 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, ऑफ कोर्स 1 लीटर में H2O2 कुछ होगा, तो इसका 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन तुम्हें x लीटर ऑफ ऑक्सीजन देगा एट एसटीपी, दैट इज द मीनिंग ऑफ xv, ठीक है ना? बस इतनी बात समझ में आती है, इसमें अब तो कुछ बचा ही नहीं, राइट? अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, देखो इसको मैं हटा रहा हूं, ये पूरा चला जाएगा, जाने दो, ठीक है? तो एक बार लिख लेते हैं 2H2O2 दैट इज गिविंग यू व्हाट 2H2O प्लस व्हाट O2। 8.9 m H2O2 का क्या मतलब है कि मान लो तुम्हारे पास इसका अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है, राइट? तो उसमें 8.9 मोल्स ऑफ H2O2 इन 1 लीटर सॉल्यूशन, राइट? इसका मतलब 8.9 m हो गया, राइट? बस दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट योर 8.9 m, ठीक है? अब इसके 2 मोल से, मतलब इसके 2 मोल से तुम्हें ऑक्सीजन के कितने मोल मिल रहे हैं? 1 मोल मिल रहे हैं। तो 8.9 मोल ऑफ H2O2 विच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन विल गिव यू हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2? तो अगर इसके 2 से 1 मिल रहे हैं तो 8.9 से कितना मिलेगा? 8.9 बाई व्हाट 2, इतने मोल्स ऑफ O2 आ गए। और इतने मोल्स ऑफ O2, हर मोल ऑफ O2 ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होगा 273 केल्विन एंड 180 m पे 22.4 लीटर होगा, तो इनटू क्या कर दो, बस 22.4 कर दो, राइट? दिस विल बी योर, क्या बोल रहा है वो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ।
तो दिस विल बी योर वॉल्यूम स्ट्रेंथ, राइट, सिंपल, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। इसको रिवर्स तरीके से सोचो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इतना होने का मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन का मतलब क्या कि जो मोलैरिटी होगी वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, नहीं, अगर तुम्हारा 1 लीटर सॉल्यूशन है तो मानते हो इस बात को, क्योंकि मोलैरिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वंस यू हैव फिक्स्ड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज 1 लीटर, मोलैरिटी विल बी नथिंग बट योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। Now molarity is 8.9 m H2O2, that means number of moles of H2O2 is also 8.9 moles in 1 liter of H2O2 solution, right? And you know from equation that 2 moles of H2O2 will give you 1 mole of O2. So in 1 liter solution, because you have 8.9 moles of H2O2, why it is? Because you have molarity 8.9 m. This 8.9 mole of H2O2 will give you basically what, 8.9 by 2 moles of what, oxygen, and each mole of oxygen will have what, 22.4 liter at this temperature and pressure, which is basically what your earlier STP. You're getting this point, and this will be your answer. So this was the discussion, guys, right? And I hope this session was a bit beneficial for you, right? Okay, so all the best, take care.